तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों के कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ़ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। This is Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal making lofty promises on how he is going to clean up the Yamuna River on war footing. 2 long years have slipped by since this promise was made, but the once pristine Yamuna continues to be ensnared by pollution. Today, toxic foam floats on Yamuna's surface and the river has been turned into a virtual drain. As we gaze upon its troubled waters, we witness a grim reality. Despite the promises and rhetoric, the authorities have often turned a blind eye to the worsening plight of the river. ये तो मैम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसको रोकने के लिए कोई प्रशासन तो आता नहीं, ना कहीं से कोई शासन आ रहा है, और ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा दूषित होती जा रही है यमुना दिन पे दिन। यमुना में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पशु पालन, भैंस वगैरह, गाय वगैरह सब इसी में आती है, पानी पीती है, उनको भी बड़ी हानिकारक है ये। सरकार का सबसे पहले मैम ये पॉल्यूशन तो ख़त्म हो, ये आगे से जो इसमें व्यूवर जो गंदे नाले डाले गए हैं उन नालों का समाधान करा जाए। उसी की वजह से ये फॉग बन रहा है, इतना जो झाग बन रहा है, ये झाग उन्हीं की वजह से बन रहा है और उसी की ज़्यादा वजह से यमुना दूषित हो रही है। पानी गंदा है, साइन बाग हो गया, ओकलेट हो गया, जामिया हो गया, सब नाले का पानी आ रहा है इसमें। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि नालियाँ बनवाए, गंदा पानी अलग किया जाए, इसमें साफ पानी किया जाए। The Yamuna River is a tributary of the Ganges and spans 1,376 kilometers from its source in the Himalayas and runs through several states. However, the white froth observed on the river's surface is a concerning blend of sewage and industrial waste. The contamination of the river has led to dire consequences for both the ecosystem and the well-being of the communities residing along its banks. We tested this water sediments in 2012. We found very high toxic contents, heavy metals, mercury in the sediments, even in some cases in water. So, and if you see that, the Yamuna before Wazirabad and post Wazirabad is very different. And pre-Wazirabad, even our test report show that, in 2012, the contamination level is very less. But in post-Wazirabad, that stretch, 20-kilometer stretch is very highly polluted. So this is very pathetic, and this is also irony that we are not able to clean up this small stretch of 20 kilometers as of now, and the issue has been raised since more than 2 decades, but still little actions has been initiated to clean up this Yamuna. It's a very small stretch we need to take care, and I also sometimes surprised, even I am staying in Delhi almost more than 2 decades, and I also surprised why this, task is not been undertaken. We have enough resources, technical resources, financial resources, and we have a very big plans are going on for river cleanup and other things. So this is I also sometimes, feel, why we couldn't achieve this, target of cleaning up Yamuna, and that too, that small stretch. For many decades, the Yamuna has been plagued by the dumping of toxic chemicals and untreated sewage. Successive governments have been silent spectators to this environmental crisis, only making lofty promises during elections and subsequently failing to take meaningful action. एक जो चीज़ हम लोग मानते हैं और जिसको बार बार हम उठाते हैं, वो ये है कि जब तक यमुना में उसका बहता हुआ पानी नहीं आएगा वापस, तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं बनी रहेंगी। और उसके लिए जो अभी जिस तरीके से काम किया जा रहा है, एसटीपी बनाते हैं, सीटीपी बनाते हैं, वो कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। उनके जो वांछित परिणाम हैं या जो परिणाम बताए जाते हैं, वो परिणाम नहीं निकले। आपको हैरानी होगी, अभी 1376 किलोमीटर की लंबी हम कहते हैं यमुना नदी, मगर इसका केवल प्रारंभिक 100 किलोमीटर हिस्सा ही बहती हुई नदी है। और नदी में नदी बहती रहे, इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का पानी नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा संकट आज यमुना नदी पर जो दिल्ली से ऊपरी क्षेत्र में वो हो गया है बहुत बड़े पैमाने पर अनसस्टेनेबल मैकेनाइज्ड माइनिंग,
जो कि बहुत तरह से इलीगल भी है। उसकी वजह से जो लेन सीजन होता है, जब गैर मानसूनी महीने होते हैं, उस दौरान दोनों सरकारें, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, बहुत ही विनाशकारी तरीके से नदी में खनन कर रहे हैं। हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां उद्योग लगे हुए हैं। यमुनानगर से शुरू हो जाइए आप, उस दूसरी तरफ कुछ जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो यमुना के साथ लगते हैं, उन सभी जिलों से प्रदूषित पानी अंततः यमुना नदी में ही आता है और जिसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ तो नदी में उसका बहता हुआ ताज़ा पानी कम हो गया है, दूसरी तरफ उसमें जो है पोल्यूटेड वाटर की मात्रा बढ़ती जा रही है। उसका रिजल्ट हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में एक नदी जिसका इतना ज़्यादा धार्मिक ऐतिहासिक महत्व रहा है, पर्यावरणीय महत्व है, और वो देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें एक नदी नाला बन चुकी है। हम कहते हैं कि नदी में जब तक उसका बहता हुआ पानी नहीं आएगा, तब तक आप नदी में कितने भी प्रयास कीजिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, नदी साफ नहीं होगी। In Delhi, a staggering 792 million gallons per day of sewer water is generated. Yet, only 550 mgd undergoes treatment in sewage treatment plants. The alarming consequence of this disparity is that the remaining 242 mgd of untreated sewer water is discharged directly into the Yamuna River. The National Green Tribunal has cast a critical eye on this issue, calling it extremely disappointing, as large-scale pollution in the Yamuna persists without restraint. दिल्ली के अंदर करीब 3200 करोड़ की स्कीम चली थी, एक एसटीपी प्लांट्स वगैरह सेटअप किए थे, एक इंटरसेप्टर सीवरेज प्रोजेक्ट रही थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है और गंदा पानी जो का तू यमुना में आ रहा है, वो जितनी कैपेसिटी के लिए वो बनी थी उससे कहीं ज़्यादा सीवेज जनरेशन हो रहा है शहर के अंदर। और अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी संस्था हो, अगर 10 साल से अगर इतना भी नहीं कर पा रहे कि यमुना में थोड़ा सा दिखे, परसेप्टिबल विजिबल चेंज नदी के पानी में आए, तो फिर हम उसको कैसे कह दें, उसको कैसे वाहवाही दे दें। एनवायरनमेंट इज़ नॉट ए इलेक्ट्रल इशू, इस पर कोई सरकार ना तो गिरती है ना बन सकती है। ये एक खाना पूर्ति के लिए जस्ट टू डेकोरेट देयर मैनिफेस्टो दे से इट। सॉल्यूशन की जब तक बात आती है, नदी को एक तो साफ पानी चाहिए, नदी को अपना पानी चाहिए, दूसरा नदी गंदा पानी ढोने के लिए नहीं बनी है, तीसरा हमारी जो मानसूनल रिवर्स है इंडिया की, इनका एक अलग ही सिस्टम है। इनकी एक बहुत बड़ी फ्लड प्लेन होती है जो कि 2, 3, 4 किलोमीटर चौड़ी होती है, उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि नदी का इकोसिस्टम बना रहे और नदी के अंदर फ्रेशनेस बनी रहे, नदी के अंदर अविरलता जिसे कहते हैं, पानी बहता रहे। While the government consistently asserts in its media interactions that it is doing its utmost to clean up the Yamuna, the on-ground reality tells a starkly different tale. Despite the promises and reassurances, the river's condition continues to deteriorate, with pollutants and untreated sewage unabatedly flowing into its waters. As Delhiites emphatically assert, the time for action is now. Mere rhetoric and empty pledges fall far short in restoring the Yamuna to its former glory.